electrotherapy is quite ancient, and it has been documented that in ancient Rome in 63 AD. Yes. Sir? Learn about what is electrotherapy. Electrotherapy is a old and ancient technique, and it has been documented that in ancient Rome in 63 AD, it was reported by Scribonius Largus that the pain was relieved by standing on an electrical fish at the seashore. So it was the first documented evidence how electric generated by a fish was used to relieve the pain. Now, what is electrotherapy? बिजली से इलाज या विद्युत चिकित्सा जिसको हिंदी में कह सकते हैं. It can be defined as the treatment of patients by electrical means. These electricity or the electrical energy are applied to the body to bring physiological changes for therapeutic purposes. In electrotherapy, treatment of injury and diseases is by electricity or by applying electrical machines. So various electrical appliances which are used in the treatment. Now, what is current? Current is the flow of electrons or electric charge. So many current-based modalities are used in electrotherapy, and you will hear the term frequency. Frequency is the number of occurrence of any event per unit time in a given minute or second or like that. So that is called frequency. And wavelength. Wavelength is the distance between the two crest of a wave or two troughs of a wave. So this is a brief terminology. Now, classification of electrotherapy can be classified in two ways. One is, which I'm going to tell you, is a slightly traditional and old classification, in which all the electrotherapeutic modalities have been classified as low frequency therapy, medium frequency current, and high frequency current. Now, all the equipments have been tried to grouped under these three titles. Low frequency is Faraday, galvanic, TNS, and dynamic currents. Medium frequency is interferential and Russian current, and high frequency under high frequency, shortwave, microwave, long wave, and laser all are grouped. Now, classification of electrotherapy as per most recent, you can say, it groups all the modalities under three groups, but its classification is electrical, thermal, and non-thermal. Under electrical, all the electrical currents are put together: Faraday, galvanic, TNS, IFT, Russian, dynamic current, antiphoresis, etc. Thermal, under thermal, all the heat emitting or heat producing modalities have been put together, like diathermy, shortwave, microwave, diathermy, paraffin wax bath, infrared, thermal ultrasound, heat, thermal ultrasound, continuous mode of थोड़ा हिंदी में सर प्लीज सर थोड़ा स्लो सर हिंदी में पढ़ा दो please keep mum, please keep I will tell you in Hindi also. So मशीनों को इलेक्ट्रिकल, थर्मल और नॉन थर्मल के उसमें बांटा गया है. इलेक्ट्रिकल में सारी इलेक्ट्रिकल करंट्स आ जाती हैं, जिनके नाम आपको पहले बताया: फैराडे, गैल्वेनिक, टियंस, आईएफटी, रशियन डायनामिक करंट, एंटोफोरेसिस. थर्मल में जिसमें हीट प्रोड्यूसिंग मशीनें रखी गई हैं: शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रो डायथर्मी, पैराफिन वैक्स बाथ, इंफ्रारेड किरणें, थर्मल अल्ट्रासाउंड और कंटिन्यूअस अल्ट्रासाउंड, बिकॉज इट इज सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, बहुत स्पीड हो रही है. कुछ समझ नहीं आ रहा सर. हमें समझ में नहीं आएगा तो पढ़ाने का फायदा क्या है सर? सर सब ऊपर से जा रहे हैं सर. थोड़ा सा स्लो प्लीज. तो ध्यान से सुनिए, हम पढ़ा रहे हैं अभी. आपको नाम ही गिना रहे हैं, आप तो कुछ बता रहे हैं. आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए. सो थर्मल अल्ट्रासाउंड सर एक बच्चे को पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाइए सर. सो थर्मल में जिसमें मतलब हीट प्रोड्यूसिंग सारी मशीनें आती हैं, जिसमें शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, पैराफिन वैक्स बाथ, इंफ्रारेड रेज
और थर्मल अल्ट्रासाउंड। अब नॉन थर्मल में इसमें हीट नहीं प्रोड्यूस होती, ये मशीनें हीट नहीं प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये भी इलाज के लिए यूज होती हैं। इसमें पल्स अल्ट्रासाउंड, पल्स शॉर्टवेव डायथर्मी और डायपल्स मशीनें ये आती हैं। अब जो करंट है जो हम लगाते हैं, वो करंटों के इस्तेमाल क्या है, करंटों से हमें फायदा क्या है, क्या थेरेपेटिक बेनिफिट्स हैं। तो इसका जो बेनिफिट है, एक तो पेन को कम करता है, ज्वाइंट रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करता है, न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन अगर कोई है, नर्व मसल की बीमारी कोई है तो उसमें फायदा देता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ है को बढ़ाता है, मसल एट्रोफी को खत्म करता है, मसल की जो कमजोरी है उसको खत्म करता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ाता है, रेंज ऑफ मोबिलिटी पहले मैंने बता दिया। देयर इज मतलब repeated stretching of contractor and shortened soft tissue muscles when you apply electrical currents. The muscles contract passively, so there is some kind of stretching effect is applied. Then it repairs the tissue. It helps in healing of the tissue by enhancing microcirculation and increasing protein synthesis to heal wounds. Acute और chronic जो swelling होती है उसको भी swelling को खत्म करता है और blood supply को, peripheral blood supply को increase करता है। और आयंटोफोरेसिस एक टेक्निक है जिसमें मतलब जो है हम करंट के माध्यम से कुछ दवाइयों को, गिनी चुनी दवाइयों को हम अंदर बॉडी के अंदर भेजने का प्रयास करते हैं। तो और यूरिन और फीकल इनकॉन्टिनेंस, अगर किसी को यूरिन और फीकल इनकॉन्टिनेंस से मतलब ये है कि किसी को, जैसे आपने देखा होगा कि यूरिन और बहुत जल्दी जरा छींकने खांसने में यूरिन थोड़ा बाहर आ जाता है, तो इसी तरह से स्टूल भी बाहर आ सकता है, थोड़ा बहुत जोर लगाने से पेट का जोर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो इसको भी मसल्स को, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्टिमुलेट करके और उसको मतलब इस प्रॉब्लम में काफी हद तक मदद हो सकती है। अब हम आते हैं लो फ्रीक्वेंसी करंट पे। लो फ्रीक्वेंसी करंट क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी करंट जो है नर्व और मसल को स्टिमुलेट करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज होती है। जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज ए टाइप ऑफ थेरेपेटिक करंट, therapeutic treatment that can serve many different purposes. It is used to decrease pain, swelling, and to improve circulation. Electrical stimulation is also used to activate and train a muscle which has lost its action, or in training a muscle which has lost or forgotten its action after an injury or surgery. तो electrical stimulation जो है कई कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जो है जहाँ पे किसी मसल को नया एक्शन सिखाना है, टेंडन ट्रांसफर जब हुआ है या कोई भी मसल अपना काम करना भूल गई है, उसको पता नहीं है कि कैसे काम वो दोबारा से करना है, तो ये मसल री एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है। जो है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन पैरालाइज्ड, जिसको हम डिनर्वेटेड कहते हैं, या पार्शियली पैरालाइज्ड, जिसको पार्शियल डिनर्वेटेड मसल्स कहते हैं, उसमें दोनों में यूज होती है। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स के एग्जांपल फैराडे और गैल्वेनिक है, ये ट्रेडिशनल एग्जांपल हैं, बहुत ओल्ड करंट्स हैं जो फिजियोथेरेपी में काम आती हैं। इसके अलावा और भी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 50 to 100 हर्ट्ज के बीच में है। फैराडे करंट और गैल्वेनिक करंट का कंपैरिजन दिखाया गया है। फैराडे करंट क्या होती है? फैराडे करंट आर शॉर्ट ड्यूरेशन करंट्स, व्हेयरएज गैल्वेनिक करंट्स आर लॉन्ग ड्यूरेशन करंट्स। फैराडे करंट में 1 मिलीसेकंड की यूजुअली पल्स ड्यूरेशन की करंट यूज करते हैं, जबकि गैल्वेनिक में 100 मिलीसेकंड की पल्स ड्यूरेशन की करंट यूज करते हैं। फैराडे करंट को ऑफन सर्ज कर दिया जाता है, गैल्वेनिक करंट को ऑफन इंटरप्टेड गैल्वेनिक के रूप में ज्यादा यूज किया जाता है। These currents are used to stimulate normal to partial paralyzed muscle, फैराडे करंट में, जबकि गैल्वेनिक करंट कंप्लीट पैरालिसिस है तो गैल्वेनिक करंट यूज करते हैं। जो है फैराडे करंट्स आर यूज्ड फॉर मसल री-एजुकेशन बिसाइड other purposes, whereas galvanic currents are used, especially the continuous galvanic currents are used for iontophoresis, a technique in which the medicines are ionized and then it is driven along with the help of current. This is one. दोबारा बताना एक बार। iontophoresis एक टेक्निक है जिसके माध्यम से कंटिन्यूअस गैल्वेनिक करंट के माध्यम से हम जो सॉल्यूशन फॉर्म में मेडिसिन होती हैं उनको जब उस सॉल्यूशन में करंट को प्रवाहित करते हैं तो करंट जो है आयनाइज हो जाती है और वो आयनाइज फॉर्म में वो करंट जो है बॉडी के अंदर जो है जाती है। तो इसको iontophoresis इस टेक्निक को कहते हैं, जहां इलेक्ट्रिकल करंट दवा को अंदर पहुंचाती है। अब ये सारे कुछ स्टिमुलेटर्स हैं, आप देख रहे हैं। जो है मूव नहीं हो रही सर, हैं? स्लाइड मूव नहीं हो रही सर, वहीं पर ही है सर,
फर्स्ट स्लाइड पे ये इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी पे ही है। हो रही है सर मूव। नहीं सर, हो रही है हो रही है हो रही है सर, बाकी सब हो हो रही रही है। इतनी स्पीड से हो रही सारी चीजें यार। अच्छा, अब इंडिकेशंस एंड कंट्राइंडिकेशंस ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट्स। लो फ्रीक्वेंसी करंट के कहाँ इसको यूज कर सकते हैं? ऑल नर्व injuries like radial nerve paralysis, ulnar nerve paralysis, facial nerve injury, muscle weakness because of some damage to the nerve, सभी जगह यानी न्यूरोमस्कुलर कोई भी कंडीशन है तो वहां पे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन यूज करते हैं। मसल वीकनेस है अराइजिंग आउट ऑफ इधर नर्व प्रॉब्लम और मसल प्रॉब्लम, तो ये सब जगह ये इनको यूज करते हैं। जहां पे इनको नहीं यूज कर सकते वो जानना जरूरी है। जो जिनको रिसेंट कट्स हैं, ओपन वुंड्स हैं, अनहील्ड स्कार्स हैं, रिसेंट फ्रैक्चर्स हैं, मेटल प्लेट फिक्सेशन है, उनके बॉडी में कहीं ना कहीं मेटल है, तो वहां पे करंट नहीं यूज कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन है, स्किन हेल्दी नहीं है, स्किन डिजीज है, तो कई ऐसी जगह जहां पे स्किन हेल्दी नहीं है तो वहां करंट टॉलरेट नहीं होगी, क्योंकि ये लो फ्रीक्वेंसी करंट स्किन स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा करती है। रिसेंट सर्जरी, ये सारी चीजें में नहीं कर सकते हैं। ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन RTNS or TENS is a electrical nerve stimulation, is a type of nerve stimulation, electrical stimulation used to help decrease acute and chronic pain। यानी पेन को कम करने के लिए टेंस मशीन बहुत कारगर है। and TENS works by altering or interrupting the painful signals that travel from injured tissue to the brain। यानी एक पेन को कंट्रोल करने की एक थ्योरी है जिसको गेट कंट्रोल थ्योरी कहते हैं, तो उसके जरिए ये पेन को महसूस नहीं होने देता, ब्रेन तक मतलब सूचना नहीं पहुंच पाती पेन की, और पेशेंट को आराम लगता है। जो है टेंस जो है सिंगल चैनल का भी होता है, डबल चैनल का भी होता है, यानी 2 पैड से भी लगाया जा सकता है और 4 पैड या 4 इलेक्ट्रोड्स के माध्यम से भी लगाया जा सकता है। इट इज अप्लाइड ओवर पेनफुल एरिया टू मॉड्यूलेट पेन। पेन को कम करने के लिए पेनफुल एरिया पे इसको लगाते हैं, और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन इज 15 to 20 मिनट्स। तो ये टेंस जो है कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर लगाना चाहिए, जिससे ज्यादातर हमारी जो पेन को कम करने की मॉडलिटीज हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, कहीं पे टाइम ना भी लिखा हो तो भी ऑन एन एवरेज 15 मिनट तो जरूर लगाएं, नहीं तो उसका इफेक्ट इतना नहीं हमें मिलने वाला है। और इट इज यूज्ड टू न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, लो बैक पेन, नेक पेन एंड एनी पेन ऑफ एनी न्यूरोजेनिक ओरिजिन। ये टेंस मशीन है, एक पोर्टेबल टेंस मशीन है जिसका आपको पिक्चर दिखाया गया। नाउ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट क्या है? मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट इज फाउंड इफेक्टिव फॉर पेन मॉड्यूलेशन। द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स कैन बी ऑब्टेन्ड विदाउट एनी इरिटेशन ऑफ द स्किन, व्हिच इज एन इशू व्हेन ट्रीटिंग विद फैराडिक एंड गैल्वेनिक करंट्स। एग्जांपल इंटरफेरेंशियल एंड रशियन करंट्स। देखिए ऐसा है कि जो लो फ्रीक्वेंसी करंट्स हैं जैसे फैराडिक, गैल्वेनिक, जब इनको लगाते हैं तो एक दिक्कत ये होती है कि मार्ग स्किन, स्पेशली गैल्वेनिक के साथ स्किन रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है, खुजली होती है, पेशेंट को जलन होती है और बर्निंग सेंसेशन होती है। इलेक्ट्रोड्स के अंदर मतलब छाले भी पड़ सकते हैं, जो है वहां पे स्किन डैमेज भी हो सकती है, तो ये थोड़ा सा पेशेंट को टॉलरेट करना मुश्किल हो जाता है, स्पेशली गैल्वेनिक के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो ये सबको ओवरकम करने के लिए मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स के ऊपर आधारित हम आगे उपकरण पढ़ने जा रहे हैं, मशीनें पढ़ने जा रहे हैं, वो इस्तेमाल की गई हैं। तो ये मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट्स पेन को कम करने में इफेक्टिव हैं, और साथ ही साथ स्किन की इरिटेशन जो होती है वो नहीं होने देती हैं, जो है। अब इंटरफेरेंशियल थेरेपी मशीन एक है, वो इसमें क्या होता है कि इन इंटरफेरेंशियल थेरेपी 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट सोर्सेस को साइमल्टेनियसली इसको यूज किया जाता है। एक करंट मशीन का जो करंट है वो 4000 हर्ट्ज पे फिक्स होता है, जबकि दूसरे चैनल का करंट जो है 4000 से 4150 हर्ट्ज तक, और इसके ऊपर स्वीप फ्रीक्वेंसी और कुछ भी 100 हर्ट्ज तक ऐड की जा सकती है। लेकिन कम से कम 4000 से 4150 हर्ट्ज तक मैक्सिमम हम फ्रीक्वेंसी को इसमें वो करते हैं। तो ये सारा जो 4000 और 4150 इसका डिफरेंस हो गया, ये यानी लो फ्रीक्वेंसी रेंज में आ गया, और इस डिफरेंस को, इस फ्रीक्वेंसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये बीट फ्रीक्वेंसी जो है पेन को कम करने के लिए उतना ही इक्वली इफेक्टिव है जितना कि दूसरी लो फ्रीक्वेंसी करंट्स इफेक्टिव हैं। तो where these two current
cross in the body because these are applied in a criss-cross fashion in a diagonal manner. तो जहां पे ये दो frequency cross करती हैं body में, they give rise to a low frequency effect, and the effect is equal to the difference in their frequencies, as I already told you, and is used to treat pain and swelling, etc. The current is applied in a criss-cross manner, usually through 4 pads. 4 पैड्स के जरिए लगाया जाता है, लेकिन बाइपोलर अरेंजमेंट, इसको क्वाड्रिपोलर कहते हैं, बाइपोलर अरेंजमेंट यानी 2 पैड के जरिए भी IFT को लगाया जा सकता है। जो है इलेक्ट्रोड्स को डायगोनली प्लेस करते हैं। 2 रंग के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक रेड है तो दूसरा मान लीजिए ब्लू है या कोई और कलर है, तो उनको डायगोनली रखते हैं, मतलब जो है जहां पे स्किन में ट्रीटमेंट करना, मतलब जिस जगह का ट्रीटमेंट करना है। द मॉडलिटी द IFT इज यूज्ड फॉर पेन, मसल स्पैज्म एंड इन्फ्लेमेशन एटसेट्रा. Interferential therapy stimulate the deeper structures without any skin problem. क्योंकि स्किन का इरिटेशन नहीं होता और चूंकि हमने करंट को इस तरह से प्लेस किया तो हम ऑल राउंड पेन के ऊपर नहीं लगाते हैं, ऑल राउंड जॉइंट का पूरा डीप जो है इफेक्ट आता है जो है। तो ये इंटरफेरेंशियल थेरेपी का लगाने का तरीका है और इसको भी अगेन 15 मिनट कम से कम जरूर लगाएं। ये देखिए, ये पहली वाली फोटो में ये 4 पैड के जरिए लगाया गया है ये, और दूसरे वाले में सक्शन इलेक्ट्रोड्स के जरिए, सक्शन कप्स के जरिए लगाया गया है कि वो साथ में मतलब जो है वहां पे सक्शन के माध्यम से थोड़ा सक्शन इफेक्ट भी आता है, यानी एक मैकेनिकल मसाज की इसकी 2500 हर्ट्ज है, and it is a form of stimulation that uses electricity to contract muscle tissue. Muscle tissue को contraction करने के लिए, stimulate करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसलिए it is used to strengthen weak muscles after injury or surgery, or just to strengthen weak muscles after any disuse, atrophy. तो ये सारा रशियन करंट्स उसके लिए बहुत, यानी स्ट्रेंथनिंग करंट है, आप ये कह लें, ताकत बढ़ाने के लिए पेशेंट्स के ये बहुत हेल्पफुल है, मतलब जो है। और ये नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि दूसरी जो करंट्स हैं गैल्वेनिक और फेरेटिक वो पैरालाइज मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को ऑब्टेन कर सकती हैं, लेकिन रशियन करंट सिर्फ नॉर्मल इनर्वेटेड मसल्स हैं, जो नॉर्मल हेल्दी मसल्स हैं जिनमें नर्व सप्लाई इंटैक्ट है, उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को ये ऑब्टेन कर सकती हैं। डायडायनेमिक करंट्स क्या है? डायडायनेमिक्स अगेन इज ए वैरायटी ऑफ लो फ्रीक्वेंसी करंट. The frequency is 50 hertz and pulse duration is 10 millisecond. There are 2 main types that are characterized of dynamic current. Single phase current, जिसमें waves होती हैं, एक ही phase में होती हैं, या monophasic waves होती हैं, जिसको MF के नाम से डिनोट किया गया है, और डबल फेज या बाई फेज, यानी करंट ऊपर भी होती है और नीचे भी आती है। तो ये बाई फेजिक या डाईफेजिक करंट या DF के नाम से इसको कहा गया, इस वैरायटी को। और एक और 2 और वैरायटी होती है जिनको कहते हैं CP या CPID। CP कर्टियस स्पिरिटस इसके नाम है, उसके दैट इज एब्रिविएशन इज CP। CPID CP आइसोडायनेमिक एंड लॉन्गेस्ट स्पिरिटस या LP। तो ये सारी जो वैरायटीज हैं ये डायडायनेमिक करंट्स के वेव फॉर्म्स के हिसाब से नाम रखे गए हैं, और ये सभी डायडायनेमिक करंट्स जो हैं पेन, मसल स्पैज्म और माइल्जिया, न्यूरोलजिया सबको ठीक करने के लिए ये काम आती है। पेन, न्यूरोजेनिक और मस्कुलर, न्यूरोमस्कुलर पेन को कम करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। थर्मोथेरेपी, अब हमने अभी तक जो आपको बताया तो वो सारी जो मॉडलिटीज हैं वो स्टिमुलेशन पर्पज से यूज होती हैं। अब थर्मोथेरेपी में हीट प्रोड्यूसिंग मॉडलिटीज को हमने शामिल किया हुआ है, जैसे शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, इंफ्रारेड किरणें, पैराफिन वैक्स बात, ये सब हीट प्रोड्यूस करती हैं। जब इनको आप लगाएंगे तो पेशेंट कहेगा सब गरम लग रहा है मुझे, गरम सिकाई हो रही है हमारी। जो उसमें स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता था, इसमें हीटिंग इफेक्ट आएगा जो है। और हीटिंग इफेक्ट जो है बहुत सारी कंडीशंस में डिजायरेबल होता है, क्योंकि हीट की प्रॉपर्टी होती है कि पेन को कम करता है, स्वेलिंग को कम करता है, साथ में मतलब जो है ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो लोकल जो मेटाबॉलिज्म है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो वहां से ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं जो है। तो हीट इज क्वाइट डिजायरेबल इन सर्टेन इंजरीज एंड डिजीजेस। सो these are the modalities. Now we will learn about them one by one. Shortwave diathermy,
also nicknamed as SWD, uses high frequency energy, and the frequency is 27.12 megahertz, whereas the wavelength is 11 meter. It produces quite deep heat in the joints and soft tissues. This form of treatment can be applied to deeper structures than any other form of heat treatment, because कोई भी इतना deep heating नहीं देता जितना कि short wave diathermy. Heat तो देने को हीटिंग पैड भी घर में लगा लीजिए, पानी की बोतल भी लगा लीजिए, सब हीट देती हैं, लेकिन जहां तक ज्यादा मतलब गहराई तक हीट महसूस हो या डीपर स्ट्रक्चर्स को हीटिंग महसूस हो, तो उसमें शॉर्ट वेव डायथर्मी जो है काफी हेल्पफुल है. इट कम्स इन कंटिन्यूअस एंड पल्स मोड. शॉर्ट वेव डायथर्मी कंटिन्यूअस मोड में भी आती है और पल्स डायथर्मी भी आती है, जिसमें इतनी हीट नहीं महसूस होती है. तो ये दोनों फॉर्म के डायथर्मी के ऑपरेटर्स आते हैं जो है. Now, treatment is delivered by pad electrodes or by disc electrodes and are applied in a variety of ways. A towel is used usually to soak any perspiration and to protect from overheating. एक तौलिया लगा लेते हैं और उसके ऊपर पैड रख देते हैं, अपनी पेशेंट के बैक पे लगाना है, कहीं लगाना है या जहां पे, तो यानी टॉवेल इज जस्ट प्रोवाइड, towel is used to just to make the patient comfortable, because if you directly apply the pad, then it will be difficult for patient to tolerate, because quantum of heat is quite high in continuous short wave diathermy. All metals such as jewelries etc. worn by the patient be removed first. Treatment is again given for 15 minutes, and the diathermy is effectively removes joint pain, soft tissue, promotes healing. But it is useful for subacute to chronic conditions. All kinds of soft tissue problems, including backache, neck pain, and other injuries, subacute to chronic injuries, chronic pains, they respond well to the short wave diathermy. This is in this picture you are seeing by disc electrode, patient's knees are given the heat. Patient is sitting comfortably, and one more thing you have to observe, that patient is sitting on a wooden chair and he is putting his feet over a wooden board, so that there is no danger of getting any electric shock. So metal should be avoided. So patient should not sit on any metallic chair or any bed which has metal in it. So all these precautions needs to be taken with short wave diathermy. Now coming on to the microwave diathermy. Microwave diathermy uses again the microwaves. They are a part of electromagnetic spectrum and heats to lesser depth compared to the short wave diathermy, but more than infrared rays. So for medium placed structure, microwave diathermy is a quite good choice. Frequency is 2450 megahertz and wavelength is 12.25 centimeter. It is primarily used to superficial to medium depth muscles and joints such as shoulder etc. Output is via single electrode, in contrast to short wave diathermy, where we have seen that two pad electrodes are used. Most of the other properties of working and physiological benefits are similar to short wave diathermy. तो माइक्रोवेव डायथर्मी में माइक्रोवेव किरणें इस्तेमाल की जाती हैं. ना ये माइक्रोवेव डायथर्मी की पिक्चर है, जिसमें आपने देखा कि एक सिंगल मोनोड इलेक्ट्रोड है. ये इसके जरिए पेशेंट को हम हीट देते हैं, और चूंकि हीट इसमें इतनी इंटेंस नहीं होती है, तो इसको कोई टॉवेल के बगैर भी दिया जा सकता है. Long wave diathermy. Long wave can treat larger area than ultrasound. Frequencies like ultrasound 1 megahertz. It treats a smaller area. Long wave resembles in working with ultrasound in the sense that delivery of treatment is via probe type applicator, and also is lightweighted, portable, and unit looks like and resembles like अल्ट्रासाउंड मशीन. तो लॉन्ग वेव डायथर्मी की फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड जितनी ही है, छोटा एरिया को चूंकि प्रोब के जरिए लगाते हैं, तो जैसे डायथर्मी में आपने देखा बड़े बड़े डिस्क इलेक्ट्रोड हैं या पैड इलेक्ट्रोड के माध्यम से लगाते हैं. लॉन्ग वेव डायथर्मी छोटा एक एप्लीकेटर होता है, कोई लोकलाइज्ड पेन हो तो उसके लिए लॉन्ग वेव डायथर्मी ज्यादा हेल्पफुल होती है. ये लॉन्ग वेव डायथर्मी की पिक्चर है. Now coming on to the laser.
लेजर इट स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका लेजर जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो इसमें क्या होता है, इसको फोटो बायोमॉड्यूलेशन भी कहते हैं। लेजर दो तरह का होता है, लो इंटेंसिटी लेजर, लो लेवल लेजर थेरेपी, और इसको क्लास 3 लेजर भी कहते हैं, या हाई पावर लेजर थेरेपी जिसको क्लास 4 लेजर कहते हैं। लो लेवल लेजर थेरेपी को कोल्ड लेजर भी कई लोग कह देते हैं क्योंकि उसमें हीट ऐसा महसूस नहीं होता है जो है, और इसमें मतलब पेनिट्रेशन भी चूंकि क्लास 3 लेजर है, लो लेवल का लेजर है, तो इसका पेनिट्रेशन भी उसकी तुलना में हाई पावर लेजर की तुलना में कम होता है। आईज आर प्रोटेक्टेड बाय वियरिंग सन गॉगल्स। सन गॉगल्स के माध्यम से आईज को हम प्रोटेक्ट कर देते हैं। पेशेंट को भी कहते हैं आप भी गॉगल पहनो, और खुद भी फिजियोथेरेपिस्ट भी गॉगल पहनता है, जिसके जरिए, क्योंकि इसमें जो किरणें निकलती हैं वो आंखों को डैमेज कर सकती हैं, आंखों के लेंस को स्पेशली डैमेज हो सकता है, इसलिए जो है ये गॉगल्स पहनना जरूरी है। लेजर थेरेपी इज यूज्ड फॉर पेन रिडक्शन, टिश्यू रिपेयर एंड इम्प्रूव वेस्कुलर सप्लाई। Indications are more or less similar like other modalities. You are seeing the example of laser, how a laser is applied, and some light is कैसे रिपेयर हो जाता है सर? टिश्यू कैसे रिपेयर होते हैं सर इसमें? ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, हाई पावर लेजर है ये, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज कर देता है, थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। तो साथ में जो यहाँ पे नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स हैं, इस रीजन में गुजरती हैं, उनको सिडेट कर देता है, पेन मॉड्यूलेट हो जाता है जो है। ये लेजर के टाइप से देखिए, क्लास 3 लेजर, क्लास 4 लेजर की पिक्चर में क्लास 3 लेजर की डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन सुपरफिशियल है, व्हेयरएज यहाँ तक डेप्थ है, जबकि इसकी हाई पावर ये जो क्लास 4 लेजर है इसकी डेप्थ थोड़ी मतलब उससे ज्यादा है। अब आते हैं दूसरी नेक्स्ट हीट प्रोड्यूसिंग मॉडलिटी पे, जिसको हम वैक्स बाथ कहते हैं। वैक्स बाथ, इसमें मोम की चिकित्सा या मोम के जरिए उपचार करते हैं। इसमें पैराफिन वैक्स होती है, वैक्स को मेल्ट किया जाता है 40 से 44 डिग्री 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और फिर इसके बाद जस्ट मेल्टेड वैक्स को हम लोग जो है इसको या तो पोर करके लगाते हैं या ब्रश के माध्यम से लगाते हैं। फिर इसके बाद लगाने के बाद इसको रैप कर देते हैं किसी पॉलिथीन में या और इसके बाद टॉवेल में, जिससे कि इसकी हीट बहुत देर तक बरकरार रहे, जल्दी हीट लॉस ना हो जाए। और जब ये ठंडा हो जाए इसको फिर छुड़ा करके फिर दोबारा लगा लेते हैं। इस ट्रीटमेंट को भी 15 से 20 मिनट तक दिया जाता है जो है। ये स्पेशली हाथों में, उंगलियों में, पैरों में, एंकल में, यानी जो हमारे बॉडी के जो हैंड एंड फीट हैं इनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। वैसे लगाने को एल्बो और नी पे भी लगाया जा सकता है। इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड किरणें क्या होती हैं? इट इज यूज्ड टू हीट अप द टिश्यूज, अगेन ए हीटिंग मॉडलिटी। So it is of two types, luminous and non-luminous. Penetration of luminous is more compared to the non-luminous, because non-luminous में heat नहीं ज्यादा प्रोड्यूस होती है और luminous में heat बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर luminous को ध्यान से लगाना चाहिए, नहीं तो कहीं स्किन बर्न भी हो सकता है। थेरेप्यूटिक यूजेस, इंफ्रारेड के पेन रिलीफ, जैसे सारे हीट मॉडलिटीज के होते हैं, सेम एडवांटेजेस हैं, सेम बेनिफिट्स हैं। पेन रिलीफ, मसल रिलैक्सेशन, इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज जॉइंट मोबिलिटी एंड इंक्रीज टिश्यू हीलिंग। ये पिक्चर में देखिए, ये इधर ये ल्यूमिनस जनरेटर है, ये भी ल्यूमिनस जनरेटर है, स्टैंड पे माउंटेड है, ये स्टैंड पे माउंटेड नहीं है। ये भी ये ल्यूमिनस जनरेटर है। ये ल्यूमिनस जनरेटर इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट तो देता ही देता है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल लाइट भी देता है, जबकि नॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो है वो सिर्फ प्योर इंफ्रारेड देता है। जो ल्यूमिनस है वो चूंकि इंटेंस ज्यादा होता है, तो ये क्रोनिक कंडीशन में ये देना ठीक है, और नॉन ल्यूमिनस जनरेटर को एक्यूट कंडीशन में देना ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द अल्ट्रासाउंड. Ultrasound is very commonly used modality in physiotherapy. It works on the principles of sound waves. Normal hearing limit of human ear is 20,000 hertz or 20 kilohertz. 20,000 हर्ट्ज तक ही हमारे कान सुन सकते हैं, इससे ज्यादा तेज आवाज हम सुन नहीं सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 3 मेगाहर्ट्ज, यानी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे अल्ट्रासाउंड से हम उपचार करते हैं, और इतनी तेज ध्वनि को हमारी जो है बॉडी मतलब कान सुन नहीं सकते हैं। तो द अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड वाया ट्रीटमेंट हेड
also known as transducer. The treatment head is not held stationary, it is continuously moved because it might cause damage. So continuously it is required to move it over the area to be treated. Now ultrasound के बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं. मैकेनिकल इफेक्ट होता है, बाय माइक्रो मसाजिंग इफेक्ट होता है, थर्मल इफेक्ट, अल्ट्रासाउंड हीट भी प्रोड्यूस करता है, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, इसमें एकॉस्टिक स्ट्रीमिंग और कैविटेशन जैसे इफेक्ट होते हैं. तो अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं. इट इज यूज्ड टू ट्रीट सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज and promotes healing. Scar mobilizes scar by its mechanical effect, and it reduces chronic indurated edema. Sound wave देखिए अल्ट्रासाउंड कैसे इसमें लगाया जा रहा है. पेशेंट इज लाइंग एंड द अल्ट्रासाउंड प्रोब शी इज मूविंग. सर एक बार पीछे वाला स्लाइड दिखाना. In concentric circles, in concentric circle, ultrasound probe is moved over the back. Now pharmacotherapy, certain drugs are administered with the help of current and with help of ultrasound. With help of current, the technique is called iontophoresis, and with help of ultrasonic beam, it is known as phonophoresis. What is iontophoresis? Iontophoresis uses electricity to push medication through skin into the injured tissue with aim to modulate pain or reduce pain. The continuous galvanic current waveform is used, which ionizes the because medicine is given in the form of a solution. So when continuous galvanic current is flown through this solution, the solution gets ionized, and the ions gets deposited in the body. The medications used are in the form of solution. Different medications are used for different purposes. Need not to go on all those details. But this is one form of treatment in which medicines are driven. जैसे इंजेक्शन देते हैं तो इंजेक्शन में हम इंजेक्शन दे के दवा को अंदर करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से दवा को अंदर करते हैं. इस टेक्निक को iontophoresis कहते हैं. फोनोफोरेसिस क्या होती है? फोनोफोरेसिस में जो भी हम क्रीम, एनाल्जेसिक, एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं, उसको अल्ट्रासोनिक बीम के माध्यम से वी ट्राई टू पुश द मेडिसिन इनसाइड द बॉडी. The medicine gets driven deep into the body, and in its molecular form, it is absorbed there. Now, what is dipulse? Dipulse is a device that directs pulse electromagnetic field to an area of injury. It has its biological effect on in the form of reduction of edema, pain, and it reduces swelling also. So, host of features like other modalities. Every other modality is trying to reduce the pain, swelling, tenderness, and reducing the inflammation. So dipulse is also used for the similar purposes. It accelerates the healing of wound. Another property, ultrasound also heals the fracture. Ultrasound is also used to heal the fracture. Low intensity ultrasound may be required to heal the fracture, especially in those fractures which are not responding and they are delayed. There is a delayed union. So similar, that dipulse is also used to heal the wounds and especially the fractures, especially the stress fractures. So it increases neural growth of peripheral nerves, and it treats pressure sores in the spinal cord injury patients. Description. Dipulse क्या होता है? Dipulse direct, as I told you, electromagnetic energy to a specific body area, even through clothing, casts or bandages, via a cylindrical treatment head mounted on an adjustable bracket. The technology does not cause side effect or require patient involvement. Patient चुपचाप ऐसे लेटता है. ये देखिए ड्रम शेप का इलेक्ट्रोड है. पेशेंट लेटा हुआ है और वो जहां पे उसको देना है ट्रीटमेंट, इस ड्रम शेप के इलेक्ट्रोड को रख देते हैं और बाकी ट्रीटमेंट उसका हम कि कितनी इंटेंसिटी देनी है वो हम मशीन पे सेलेक्ट कर लेते हैं. बिकॉज दिस डिवाइस pulses its electromagnetic output, it emits energy only to a fraction of time, allowing any heat associated with transfer to dissipate. So there's no heat production. Totally, you can say it's a athermal modality. It doesn't cause any heating. And 600 pulses per second, and each pulse duration is 65 microsecond. So ये
इसमें हीट आपको कुछ नहीं महसूस होती। लेकिन इसी तरह की सेम डिवाइस पल्स शॉर्ट वेव डायथर्मी में भी आती है, और पल्स शॉर्ट वेव डायथर्मी में हल्की हीटिंग होती है। जो क्रायोथेरेपी, अब देखिए नए क्लासिफिकेशन में चूंकि थर्मल है तो थर्मल में हीटिंग मॉडलिटी भी आ गई और कूलिंग मॉडलिटीज भी आ गई। तो क्रायोथेरेपी भी आप ये कह सकते हैं कि मतलब जो है it is one of the modalities used in electrotherapy. आइस बैग में करके लगा सकते हैं, पॉली बैग में करके लगा सकते हैं, आइस को लेकर के जेल पैक्स आते हैं उनको लगा सकते हैं, आप आइस इमर्जन कर सकते हैं इन आइस चिल्ड वाटर। तो आइस को बहुत सारे तरीकों से आप लगाया जा सकता है जो है, और ये जो है आइस कम से कम 20 मिनट तक लगाना चाहिए। आइस लगाने के बाद वो जगह नम हो जाती है, सुन्न हो जाती है, क्योंकि शुरू में ठंडा ठंडा लगता है, बाद में ब्लड सप्लाई जो है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, बाद में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और टिश्यू हीलिंग जो है वो प्रमोट होती है जो है। तो आइस ये मत सोचिएगा कि आइस सिर्फ ब्लड सप्लाई को रोकती है। आइस शुरू में ब्लड सप्लाई को रोकती है, बाद में ब्लड सप्लाई को बढ़ा देती है जो। And supply of rich blood in that area. So in initial stages of acute injury, cryotherapy is the treatment of choice for first 48 to 72 hours. We recommend cryotherapy should be given in any form. Now cryotherapy can be combined post-surgical in post-surgical cases also to reduce the swelling and all that. You are saying a patient is lying in the hospital, some knee surgery or some surgery has she has undergone some surgery. The cryotherapy is used to reduce the swelling, pain, and her limb has been placed on a continuous passive motion machine, where the machine is trying to mobilize the joint and preventing any muscular weakness right from start, reducing any stiffness of the joint, and at the same time preventing any deep vein thrombosis from occurring. So this is this picture is trying to convey this. Now there are mechanotherapy. What is mechanotherapy? When certain you can say electrotherapeutic modalities can be classified as a mechano means they exert some mechanical effect on the body, like traction machines, spinal traction, cervical traction, or lumbar traction. They are what they are doing. They are mechanically trying to decompress the impinged nerve from the vertebral column. So spinal traction is uses a mechanical force. Mechanical force is applied, tries to separate vertebrae, and thus has a decompression effect. It is used to relieve the back pain, neck pain, and any sciatica type of problems or any radiating pain in the arms and the limbs. It relieves muscle spasm also, because when the pain reduces, the muscle spasm is also reduced. Continuous and interrupted mode, both mode can be applied for the traction. Traction can be given in a continuous mode as well as in interrupted mode. Intermittent mode. Continuous passive motion machine device is again a kind of mechanotherapy, you can say, where you are mechanically, passively the joint is being moved. So it is also one of the mechanotherapy device. Lumbar traction machine, you are seeing, patient is lying, the traction is given to the lower back with the help of one chest band, other is the pelvic band. Both bands are applied. Patient is the machine is exerting and applying the force. The table gets moved up and down, and there is a continuous traction or intermittent traction in this way can be given, and in this method the patient's pain is relieved
when the decompression is reached. Now this is the cervical traction. In cervical traction, you are saying with a halter, you see the patient is neck is pulled up, and when because it is in continuous in intermittent mode, the movement is once it is pulling apart, and in the next phase it is bringing it back to the original position. So cervical traction can be given in this form, and it relieves any pain in the radiating in the arm and in the neck. Now continuous passive motion machine, you are seeing it is very much used in hospitals and all that, where patient is unable to move himself. The machine mechanically and passively moves the knee or whatever the joint that is placed within it. Hip and knee especially is being affected. Now, what is the hazard of electrotherapy? Electrotherapy का बहुत हैजार्ड होता है, बहुत खतरा होता है. सबसे बड़ा खतरा तो शॉक लगने का खतरा है. अगर हम जब भी पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं, तो हमें मतलब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो कि पेशेंट को शॉक लग जाए. जो है, अगर पेशेंट को शॉक लगता है, वो एक इमरजेंसी हो जाती है. जो है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और पेशेंट काफी गंभीर भी मतलब वो हो सकता है. तो ये चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए कि इलेक्ट्रिक शॉक ना हो, हमारे सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपरली अर्थड हों. जो भी हम इक्विपमेंट लगाएं उनकी ग्राउंड अर्थिंग होनी बहुत जरूरी है. जो है, और सब वायर्स और सारे जो पैड्स हैं, सब चीजें देखने चाहिए. कई दफे इसके अलावा बर्न का भी खतरा होता है. इलेक्ट्रिक शॉक के अलावा बर्न का भी खतरा हो सकता है. शॉर्टवेव डायथर्मी है और इंफ्रारेड रेज है. जैसे बहुत क्लोज से लगाया गया इंफ्रारेड रेज लैंप जो है, तो बर्न भी हो सकता है. शॉर्टवेव डायथर्मी में भी बहुत देर तक बहुत तेज हीट लगा दी गई, तो उसमें भी बर्न हो सकता है. तो हमें जब भी हम थर्मल थेरेपी या इस तरह से इलेक्ट्रोथेरेपी के कोई भी मॉडलिटी दें, तो वी मस्ट बी अराउंड देयर एंड कीप ऑन आस्किंग द पेशेंट एंड वार्न द पेशेंट कि भाई अगर ऐसा कुछ लगता है आपको कि कोई करंट सा लगता है या कुछ आपको बहुत ज्यादा गर्म लगता है या कुछ लगता है, तो आप फौरन हमें बताइए. हम फौरन इंटेंसिटी को एडजस्ट कर देंगे, कम कर देंगे. लेकिन ये सारी जो दिक्कतें हैं वो नहीं होने पाए. जो है, क्योंकि ये सारी चीजें एक बार कहीं बर्न हो गया, कहीं छाले पड़ गए, कहीं कुछ हो गया, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी. जो है, तो सडन फ्लो ऑफ करंट, जैसे मैंने बताया, शॉक में may lead to death also, because इलेक्ट्रिकल शॉक होता है तो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ करंट इज पास थ्रू द बॉडी, so it is quite hazardous in that sense. And electrotherapy devices are meant for use by qualified professionals only, especially the physiotherapist, because physiotherapist knows how to handle them. So ये ऐसा नहीं है. बहुत सारी चीजें मार्केट में मिलती हैं, लोग सोचते हैं हम उठा लेते हैं, हम ऐसे लगा लेते हैं. ठीक है, लगाने का जो मर्जी करिए, लेकिन चीजें के साइड इफेक्ट भी आपको पता होने चाहिए. जो है, तो अब हम एक बार फिर से ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, एक बार हम फिर से आपको दोहराते हैं. हमारे पास 5-7 मिनट अभी टाइम पड़ा हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक लंबा था. तो इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है? इलेक्ट्रोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट बाय इलेक्ट्रिकल मीन्स. Electrical forces or energies are applied to the body to bring physiological changes for therapeutic purposes. This is called in electrotherapy we use electrical current to the body to bring physiological changes. Physiological changes will further produce the therapeutic benefits. In electrotherapy, प्लीज म्यूट. आज वैसे भी समझ नहीं आया, इतनी स्पीड थी. म्यूट कर दो प्लीज. Please, whosoever is speaking, please mute themselves. Therapy, treatment of injury and diseases is done by help of electricity based appliances. Now, electrotherapy के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मैग्नेटिक, केमिकल, मैकेनिकल और थर्मल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है. और ये सारे जो है अलग अलग इंटेंसिटी
लगाई जाती है सेंसरी मोटर नर्व को। इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड टू नर्व टिश्यू एट सर्टेन इंटेंसिटीज एंड ड्यूरेशन टू टारगेट सेंसरी एंड मोटर नर्व्स टू ऑब्टेन। तो बेसिकली सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो कंट्रैक्शन करती हैं, मसल का कंट्रैक्शन करती हैं। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो स्किन को स्टिमुलेट करती हैं। स्किन में हमें जो कोई फीलिंग आती है, इचिंग है, इरिटेशन है, वो सब सेंसरी नर्व्स की वजह से होता है जो है। तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक करंट्स की होती हैं। इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होता है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट पर टाइम। जैसे अच्छा, तीसरी चीज मैंने आपको बताई वेवलेंथ। वेवलेंथ किसी वेव के दो हिस्सों के, यानी क्रेस्ट को या ट्रफ को, यानी वेव ऐसे जाती, लहर जैसे ऐसे वेव जाती है, तो उसके दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को वेवलेंथ कह सकते हैं। और उसके ट्रफ को, नीचे वाले हिस्से को भी हम मतलब जो है, तो ये सारी वेवलेंथ जो है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है, ये सारी करंट्स जितनी आपको बताई गई हैं उसकी फ्रीक्वेंसी भी बताई गई, साथ में वेवलेंथ भी बताई गई है। आपको एक थोड़ा समझने के लिए ये बहुत आसान रहेगा। हाँ, वेवलेंथ है नहीं, लिखा नहीं है इसमें, आपको वैसे अलग से बताया मैंने, क्योंकि हमने आगे वेवलेंथ का जिक्र किया है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी मशीन्स, लो फ्रीक्वेंसी करंट, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट और हाई फ्रीक्वेंसी करंट। अब इन्हीं के अंदर आगे वाली स्लाइड में हमने सारे मशीनों को डाल दिया है। लो फ्रीक्वेंसी करंट में कौन कौन आती है? फैराडे, गैल्वेनिक, टेंस, डायनामिक करंट। मीडियम फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंशियल करंट्स एंड रशियन करंट्स। हाई फ्रीक्वेंसी में शॉर्ट वेव डायथर्मी, माइक्रो डायथर्मी, लॉन्ग वेव डायथर्मी, लेजर एटसेट्रा। दूसरा क्लासिफिकेशन है, थोड़ा सा रिसेंट है, ये कहता है कि या तो मॉडलिटी इलेक्ट्रिकल है, या हीट प्रोड्यूसिंग है, या नॉन हीट प्रोड्यूसिंग है। यानी इलेक्ट्रिकल है, थर्मल है, नॉन थर्मल है। इलेक्ट्रिकल के अंदर सारी इलेक्ट्रिकल करंट्स को इन्होंने डाल दिया जो है, और थर्मल के अंदर ये सारी हीट प्रोड्यूसिंग मॉडलिटीज को डाल दिया, और नॉन थर्मल के अंदर जो है ये जहां पे बिल्कुल ही हीट नहीं प्रोड्यूस होती, जैसे अल्ट्रासाउंड, पल्स अल्ट्रासाउंड है, या पल्स शॉर्ट डायथर्मी या डायपल्स है, इनको डाल दिया। करंट्स के यूजेस क्या है? पेन को कम करना, जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाना, न्यूरोमस्कुलर कोई डिसफंक्शन है, पैरालिसिस है, वीकनेस है, सबको दूर करना, ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करना, ये सभी चीजें जो हैं, स्वेलिंग को कम करना, पेरिफेरल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, एंटोफोरेसिस पर्पस के लिए, यूरिन और फीकल इंकॉन्टिनेंस, पेल्विक फ्लोर की मसल्स को स्टिमुलेट करके हम कर सकते हैं। स्पेशल इलेक्ट्रोड्स भी आते हैं जो इनके लिए यूज होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी करंट्स 50 to 100 हर्ट्ज इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। एंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन इज अ टाइप ऑफ थेरेपेटिक ट्रीटमेंट दैट कैन सर्व मेनी डिफरेंट पर्पसेस। लो फ्रीक्वेंसी करंट के मेनली एग्जांपल जो है फैराडिक एंड गैल्वेनिक करंट्स हैं। फैराडिक करंट जो है वो नॉर्मल इनर्वेटेड टू से लेकर के पार्शियल इनर्वेटेड मसल्स में यूज होती है, जबकि गैल्वेनिक करंट जो है कंप्लीट पैरालाइज मसल्स में यूज होती है। ये फैराडिक और गैल्वेनिक करंट का अंतर इसमें बताया गया है। फैराडिक करंट्स आर शॉर्ट ड्यूरेशन करंट, व्हेयर गैल्वेनिक करंट आर लॉन्ग ड्यूरेशन करंट। 1 मिलीसेकंड पल्स ड्यूरेशन की करंट की यूज करते हैं, जबकि उसमें 100 मिलीसेकंड की पल्स ड्यूरेशन की यूज करते हैं। फैराडिक करंट को ऑफन सर्ज करके दिया जाता है, यानी करंट्स की जो है वेव्स जो है बढ़ती जाती हैं, बाद में फिर धीरे धीरे घटती जाती हैं, फिर बढ़ेंगी, ऐसे मतलब सर्जिंग कहते हैं उसको। गैल्वेनिक करंट्स को ऑफन डायरेक्ट मतलब कंटिन्यूअस गैल्वेनिक टॉलरेट नहीं होती, इसलिए हमेशा गैल्वेनिक करंट को इंटरप्टेड मोड में ज्यादा यूज करते हैं, या मॉडिफाइड कर देते हैं, उसको मॉडिफाइड गैल्वेनिक भी कहते हैं। तो दीज करंट्स आर यूज्ड स्पेशली फैराडिक में टू पार्शियली टू, जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मल मसल से लेके पार्शियली पैरालाइज मसल में यूज करते हैं, इसमें कंप्लीटली पैरालाइज मसल को गैल्वेनिक करंट से यूज करते हैं। फैराडिक करंट्स आर यूज्ड फॉर मसल रीएजुकेशन। हाँ बोलिए। थर्ड पॉइंट बता दीजिए, नहीं समझ में नहीं आया, दोनों सर्ज और इंटरप्ट में डिफरेंस क्या है? ये वेव फॉर्म्स हैं, यानी आप ये समझिए कि फैराडिक करंट्स को मतलब सर्ज करके लगाया जाता है, कंटिन्यूअस फैराडिक नहीं लगाया जाता, मतलब जो है इसको सर्ज कर दिया जाता है जो है। इसमें इंटेंसिटी जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है जो है सर्जिंग के माध्यम से।
और इसमें गैल्वेनिक करंट को भी इंटरप्ट कर दिया जाता है कि कंटिन्यूअस गैल्वेनिक भी टॉलरेट नहीं होता है, स्किन रिएक्शन काफी होते हैं। तो ये आइंटोफोरेसिस के लिए ये कंटिन्यूअस गैल्वेनिक करंट को यूज करते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर और लो फ्रीक्वेंसी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, कंबाइंड मॉडलिटीज रखी हुई हैं, ये सारी। नाउ इंडिकेशंस आपको पता ही है कि सारे लो फ्रीक्वेंसी जितने करंट्स हैं वो मतलब नर्व स्टिमुलेशन के लिए यूज होते हैं, जो है नर्व इंजरी, जहां नर्व डैमेज है, रेडियल नर्व पैलिसी हो गई, फेशियल नर्व इंजरी हो गई, जहां पे मसल वीकनेस आ गई इनकी वजह से, और मसल को एक्टिवेट कैसे किया जाए, तो इन सब में बहुत हेल्पफुल है। ये इसके कंट्राइंडिकेशंस हैं जहां पे हम इनको नहीं यूज कर सकते हैं। टेंस आपको बहुत कॉमन मशीन है, बहुत यूजफुल है, क्रोनिक और एक्यूट दोनों पेन को बहुत अच्छी तरह से खत्म करती है, जो है। तो ये भी क्वाइट हेल्पफुल मशीन है। ये छोटा पोर्टेबल भी हो सकता है और टेबल टॉप मॉडल भी हो सकता है। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, वो अभी तक आपने लो फ्रीक्वेंसी करंट के बारे में पढ़ा, मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, लो फ्रीक्वेंसी करंट में स्किन स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा होता है, टॉलरेट करना मुश्किल होता है, तो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट में ये दिक्कत नहीं होती। स्किन पे जो करंट ये पैड के माध्यम से लगाते हैं, तो ये स्किन पे करंट जो है आसानी से टॉलरेट हो जाती है, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। लेकिन इसको लगाते डायगोनली है, क्रिस क्रॉस फैशन में लगाते हैं, तो जहां दो ये करंट आपस में टकराती हैं, तहां पे वहां पे बीट फ्रीक्वेंसी जैसा इफेक्ट होता है, यानी लो फ्रीक्वेंसी जैसा इफेक्ट होता है। और इस लो फ्रीक्वेंसी इफेक्ट में पेन को कम करने की उतनी क्षमता होती है जितनी किसी और लो फ्रीक्वेंसी करंट में होती है। रशियन करंट भी मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, लेकिन इसको स्ट्रेंथनिंग पर्पस के लिए ज्यादातर यूज करते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी 2500 हर्ट्ज तक होती है। Excuse me, sir. Time, sir. The time is over now, sir. Next class. ठीक है, तो चलिए ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू लीव इट। Thank you. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर।